Hello my dear students. I think now the chapter 1 networking concepts are clear to all of you. I have sending you my video and I have sending you some YouTube videos also, so that all the concepts will be clear to you. Now in today's session we are going to discuss our filling the blanks of the chapter 1. The answer of the 6 filling the blanks are this. First is transmission medium, second is Bluetooth, third is PAN, fourth is hyperlink, fifth is 32 and sixth is protocol. Now we will discuss these filling the blanks. The first filling the blanks is that dash is the physical path through which the message travels from the sender to the receiver. When you are sending sender to the receiver, then which transmission medium is used? In our second topic we have used that there is a sender and on the other side there is the receiver. When sender sending a data to the receiver, then it goes through a medium, that is the telephone line or any cable. So that medium is known as the transmission medium. So the answer of the first is there is a transmission medium for sending the data from one sender to the receiver. Second answer is, second filling the blanks is, dash is a communication technologies that use low power radio waves to connect electronic device wirelessly. When one electronic device is connected to the another electronic device and without any wires, there is no any wires, and we are using the radio waves. Which concepts we use in our mobile phones to connect one mobile to another mobile? In that we use the Bluetooth technology. So dash will come, what will come? Bluetooth technology use the radio waves to connect one devices to the another devices without wires. Third is, dash is a computer network that covers a small area of 10 meters. We have read about LAN, MAN and WAN. Local area network, metropolitan area network and the wide area network. इसी के बीच में एक और नेटवर्क था, that is the PAN, that is the personal area network. जो हम पर्सनल यूज़ के लिए नेटवर्क क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, whenever we are doing a networking on our personal basis from one PC to another PC या from one mobile to another mobile, तो कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं? PAN नेटवर्क, that is known as the PAN नेटवर्क. और मैक्सिमम डिस्टेंस जब 10 मीटर का हो, 10 मीटर के डिस्टेंस के अंदर हम पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं. लैन तो एक बिल्डिंग में यूज़ होता है. मैन हमने बोला था कंट्रीज़ टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री नहीं, डैट इज़ सिटीज़ टू सिटी. अगर कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर हमने यूज़ करना है तो हम मैन यूज़ करते हैं. ऐसे ही पैन होता है तो 10 मीटर के डिस्टेंस तक यूज़ किया जा सकता है. डैट इज़ नोन एज द पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर पर्सनल यूजेस. Next, fourth answer is hyperlink. A dash is an image, audio, video, graphics or text that connect one page to the another page. Then answer is hyperlink. Hyperlink is like this. Whenever you are open any वेबसाइट्स यू सी, गूगल ही जब आप ओपन करते हो, कुछ सर्च करते हो तो बहुत सारे लिंक आ जाते हैं. उस लिंक पर क्लिक करके आप कोई इमेज ओपन करते हो, कोई ऑडियो, कोई वीडियो या एनी डेटा अबाउट एनी टेक्स्ट, तो उस लिंक को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज द हाइपर लिंक. तो ये हाइपर लिंक कुछ भी हो सकता है, कोई भी इमेज, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, एनीथिंग. Next is the IP address, that is the dash bit address.
containing a set of the numbers. IP address is the 32-bit address. IP address मैंने आपको बताया था, जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो हर पीसी का एक एड्रेस होता है. जितने भी पीसी आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, हर किसी पीसी का अपना एक एड्रेस होता है. मैं एक पीसी से दूसरे पीसी पर जब डेटा सेंड करती हूँ तो वो एड्रेस के थ्रू होता है कि इसका सेंडर कौन सा है, सेंडर का एड्रेस क्या, रिसीवर का एड्रेस क्या. इन अ नेटवर्किंग दे यूज़ द एड्रेस. जो IP एड्रेस ऑफ द पीसी एड्रेस वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का. और ऐसे होता है, वो डॉट्स के थ्रू एक दूसरे से डिवाइडेड होते हैं, और दैट इज़ नोन एज द IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. Generally IP address is internet protocol address. The set of the rules that determine how data should be transferred on the network, compressed and presented on the screen is called. मैंने आपको बताया था, जहाँ भी सेट ऑफ रूल्स आ जाएं नेटवर्किंग के अंदर, जो भी हम रूल्स यूज़ करते हैं उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स. सो अ सेट ऑफ रूल्स इज़ नोन एज द प्रोटोकॉल्स. Now next is our true and false. Now we will discuss these true and false. First is a crossover Ethernet cable has got both its end identical to each other. Ethernet cable कौन सी केबल है जो नेटवर्किंग क्रिएशन के लिए हम यूज़ करते हैं. ये हमने 2 टाइप्स की बताई थी, एक तो स्ट्रेट वे इथरनेट केबल और सेकंड क्या थी, क्रॉस ओवर इथरनेट केबल. लेकिन जो स्ट्रेट इथरनेट केबल होती है उसके दोनों एंड्स आइडेंटिकल होते हैं, क्रॉस ओवर के आइडेंटिकल नहीं होते. इसीलिए सो द आंसर ऑफ दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट आई एम रीडिंग. नेक्स्ट इज infrared technology can connect only 2 devices at a time. यस, जब भी हम इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो वो 2 डिवाइस को ही आपस में कनेक्ट कर सकती है. इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी हमने इसका एग्जांपल दिया था, रिमोट कंट्रोल एंड द टीवी. व्हेन यू आर कनेक्टिंग अ रिमोट कंट्रोल विद द टीवी दैट शुड बी इन अ लाइन ऑफ साइट. तो ये 2 कनेक्शन ही उसमें होते हैं, 2 डिवाइसेस ही आपस में कनेक्टेड होते हैं. सो इट्स आंसर विल बी ट्रू. Second is Wi-Fi stand for the wireless filtering. Wi-Fi not is a wireless filtering, it is a wireless fidelity. So it will be false. Now come to the 4th point. CAN covers an area smaller than MAN. MAN is a metropolitan area network and CAN is the cluster area network. मैन जो होता है विथ सिटी टू सिटी होता है, और कैन एक क्लस्टर एरिया होता है, एक सा एरिया जो एक दूसरे को कवर करता है, बट इट इज़ स्मॉलर देन मैन. सो इट विल बी ट्रू. नेक्स्ट इज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन टू द यूज़र्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्शन देते हैं. आप आजकल नेटवर्किंग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आपकी सारी ऑनलाइन स्टडी हो रही है, आपका बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ हो रहा है, डेली आपका इंटरनेट बहुत यूज़ हो रहा है, उसके लिए आपको डेटा लेना पड़ता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से. किसी ने जियो का ले रखा है, किसी ने आइडिया का, किसी ने एयरटेल का, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं अप्लाई करते, आपको उस डेटा के लिए पे करना पड़ता है. सो दिस इज़ फॉल्स. कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें प्रोवाइड नहीं करते. तो दीज आर द आंसर्स ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स. अगेन आई एम स्पीकिंग. फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, थर्ड इज फॉल्स, फोर्थ इज ट्रू एंड फिफ्थ इज फॉल्स. I think all the filling the blanks and the true false are clear to all. Now we will discuss application based questions. Now come to the next topic, that is the application based question. Now what is our question? That is, Riya wants to transfer the picture of her recent US trip from her mobile to her computer. Suggest a wireless mode of transmission which she can use for the same.
अगर हम अपने मोबाइल से अपने कंप्यूटर पर बिना वायर्स के कोई पिक्चर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या तो हम USB केबल यूज़ करते हैं अटैच करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को अपने कंप्यूटर से, अब हम वायरलेसली अटैच करना चाहते हैं और बहुत स्मॉल डिस्टेंस होगा, दैट कवर्स अ स्मॉल डिस्टेंस इन विच वी विल यूज़ अ रेडियो वेव्स, तो हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं? ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो अगर आप मुझे कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे कुछ सेंड करना चाहते हो तो वी कैन यूज़ अ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी टू शेयर आवर पिक्चर्स. So first answer will be the Bluetooth technology. Second question is, Mrs. Nanda is opening a new branch of his office in Noida. उन्होंने अपनी एक ब्रांच खोली है नोएडा में, एंड इट वांट्स टू कनेक्ट द कंप्यूटर ऑफ दिस ब्रांच विद द कंप्यूटर. और उसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस इज़ इन मुंबई. वो अपनी नोएडा की ब्रांच के कंप्यूटर्स को मुंबई के हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट करना चाहती हैं. देन विच नेटवर्किंग विल बी बेस्ट सूटेड फॉर दिस रिक्वायरमेंट? दैट विल बी द मैन इज़ मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटिकल मैंने आपको बताया था किलोमीटर के डिस्टेंस पे यूज़ करते हैं, और ये कहाँ होती है? सिटी टू सिटी. तो एक ऑफिस नोएडा में है और दूसरा ऑफिस कहाँ है? सेकेंड ऑफिस इज़ इन मुंबई. देन विच टेक्नोलॉजी वी विल यूज़? दैट वी विल यूज़ द मैन टेक्नोलॉजी. Third question is, which type of network will you recommend in a school for data and hardware sharing? अगर आपने स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही कुछ शेयर करना है, कुछ डाटा एंड हार्डवेयर आप कुछ शेयर करना चाहते हो, तो कौन सा नेटवर्क हम यूज़ करेंगे? मैंने बताया था अगर आपने एक बिल्डिंग के अंदर ही हम नेटवर्किंग क्रिएट करते हैं और उसी में हम अपने डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि किसी बाहर वाला आके हमें इंटरप्ट ना कर सके, वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ नेटवर्किंग विद इन आवर एरिया, विद इन आवर कैंपस या विद इन आवर स्कूल या विद इन आवर बिल्डिंग. तो विच टाइप ऑफ स्मॉल एरिया नेटवर्किंग के लिए हम कौन सी नेटवर्किंग यूज़ करते हैं? दैट इज़ लैन. लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क. तो एप्लीकेशन बेस्ड आंसर्स में फर्स्ट आंसर विल बी ब्लूटूथ, सेकेंड विल बी मैन एंड थर्ड विल बी लैन. दीज आर द एप्लीकेशन बेस्ड आंसर्स. I think these concepts are clear. Again I am telling, Bluetooth, that is using the radio wave technology. MAN, that is larger than LAN and but smaller than WAN, or within one city to another city we are using a MAN technology. And third is LAN, that is the local area network. When we are creating a network within the local area in a building or in a schools, then we are using a local area network. Next we will discuss the MCQs. Of this chapter. First question is, hypertext appears with an underline and is usually in dash color. जो hypertext है, hypertext, what is hypertext? हाइपरलिंक क्या होता है? जैसे गूगल पर आप कुछ एंटर करते हो, बहुत सारे लिंक्स खुल जाते हैं, जिस लिंक पर आप क्लिक करते हो उनको हम हाइपरलिंक बोलते हैं. लेकिन उसमें जो लिखा होता है, जो टेक्स्ट लिखा होता है, जिस पर क्लिक करके एक न्यू वेब पेज ओपन होता है, उस हाइपर लिंक के टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट. अब ये पूछ रहा है, हाइपर टेक्स्ट अपीयर्स विद एन अंडरलाइन एंड इज़ यूजुअली इन डैश कलर. जब भी आप गूगल के अंदर कुछ भी ओपन करोगे, कुछ भी फाइंड सर्च करने के लिए कुछ भी राइट डाउन करते हो, तो जितने भी लिंक्स खुलते हैं किस कलर में होते हैं? ब्लू कलर में. और जब आप उन लिंक्स को विज़िट कर लेते हो, उन लिंक्स को सर्व कर लेते हो, उसके बाद आप देखते हो कि उनका कलर कौन सा कलर बन जाता है? मैजेंटा कलर. तो स्टार्टिंग में जितने भी हाइपर लिंक्स होते हैं दैट आर ब्लू इन कलर. नाउ द सेकेंड MCQs इज, which networking device is used to connect multiple computers and computing devices directly to the network using the cable. जब हमने मल्टीपल कंप्यूटर्स और मल्टीपल डिवाइसेस को केबल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है, देन विच डिवाइस वी यूज़? दो यूज़ करते हैं हम, हब और स्विच. इन आवर स्कूल लैब the hub is used to connect the multiple computers with each other, but
एक लार्ज एरिया में, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, व्हेन देयर आर द नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, दैट इज़ इन द 100 that are in the range of the 100 computers या more than 100 computers, तो हम क्या यूज़ करते हैं? at that time we will not use hub, we will use a switch. एंड एक और डिफरेंस बताया था मैंने हब में और स्विच में, कि हब में जो डाटा आता है, अगर एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है तो पहले हब के पास जाएगा और हब सभी कंप्यूटर्स को सेंड करेगा, और जो इंटेंडेड कंप्यूटर होगा जिसको वो डेटा जाना चाहिए वो ले लेगा और बाकी डिस्कार्ड कर देंगे. बट स्विच के पास जब डेटा आएगा तो वो चेक करेगा कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस कहाँ है, इसने कहाँ जाना है, सिर्फ ये उसी इंटेंडेड कंप्यूटर को डेटा सेंड करता है. थर्ड, a dash converts digital signals to analog and vice versa. जब हम एक पीसी से दूसरे पीसी पर कंप्यूटर्स को सेंड करते हैं तो वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू जाता है, और टेलीफोन लाइंस के थ्रू जब डाटा हम सेंड करते हैं तो वो किस फॉर्म में जाता है? टेलीफोन लाइंस में के अंदर डेटा करंट की फॉर्म में जाता है, लेकिन कंप्यूटर का डेटा तो डिजिटल डेटा होता है. तो जाने से पहले डिजिटल करंट एनालॉग करंट में चेंज होता है, फिर टेलीफोन लाइंस के थ्रू एसी की फॉर्म में जाता है, एनालॉग करंट के थ्रू जाता है, और वापस जिस कंप्यूटर पे जाता है फिर वापस इट विल कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल सिग्नल. तो एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी, एसी सिग्नल डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में चेंज करने का काम, और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में चेंज करने का काम कौन करता है? मॉडेम करता है. तो थर्ड आंसर विल बी सी, दैट इज मॉडेम. नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन. केबल टेलीविज़न इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश नेटवर्क. अब केबल टेलीविज़न किसका एग्जाम्पल है? दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द मेट्रोपॉलिटिकल एरिया. हमारी जो केबल टीवी है हमारे सिटी की, वो सिटी के सभी को केबल्स प्रोवाइड करती है, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द मेट्रोपॉलिटिकल एरिया. नेक्स्ट फिफ्थ इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर्स द डिवाइसेस टू बी इन अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट विद ईच अदर. लाइन ऑफ साइट का एग्जाम्पल मैंने आपको किस में दिया था? रिमोट कंट्रोल्स और टीवी के बीच में. और वो कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर आता है? ये लाइन ऑफ साइट का एग्जाम्पल इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के अंदर. तो विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर डिवाइसेस टू बी इन अ डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट विद ईच अदर? वाईफाई तो नहीं होगा, ब्लूटूथ भी नहीं होगा, देन आंसर विल बी थर्ड, सी, दैट इज द इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी. आई थिंक all the book work is completed. You can do, if you are having your books, then you can do this book work in the book. You need not to do the book work in the you need not to write down this book work in the notebooks. You have to do only in books. And जिनके पास बुक्स नहीं है उनको मैंने इस बुक का लिंक सेंड किया है. वो इस लिंक को खोलकर, इसको आपने डाउनलोड तो कर ही लिया होगा, आप इसको खोलकर you can read out all the book work of this chapter. If there are any doubts, you can contact me, and after that I will send you the answer keys of the question answer of these chapter. The question answers, I think all the question answer will be clear to you, but I will send you the answer key. Then you have to write down the question answers in your notebook. In my next video, we will discuss the question answer of this chapter, and after that you will write down these question answer in your notebooks. In my next video we will discuss it. Still you are facing any problem in the chapter and in the question in the book work, then you can contact me anytime. Thank you and have a nice day.